ले एयरपोर्ट जो नए एयरपोर्ट है उसका सबको इंतज़ार है। काफ़ी समय से लोगों का ये एक नोशन रहता है कि यहाँ पे कब बनेगा, किस तरह बनेगा, कैसा होगा अगर बनेगा तो। क्योंकि अभी हम देखते हैं कई लोग, जैसे कोई भी आता है या दीवार से भी देखते हैं कि यार कुछ तो बन रहा है, कुछ तो यहाँ पे लद्दाखी ट्रेडिशनल वे में बनाए जा रहे हैं, पर किसी को नहीं पता है अभी तक किस तरह का कंस्ट्रक्शन रहेगा, किस तरह के यहाँ के डिजाइन्स रहेंगे। तो उसी जानकारी के लिए आज मैं ले एयरपोर्ट जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे आई हूँ। तो और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। मैं चाहूंगी सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दे हमारे दर्शकों को। Yeah, good afternoon. I am Uma Shankar. I am General Manager of the project at the Leh Airport. My colleague, Deputy General Manager, Civil, is in charge for the entire project, is a Mrs. Bansal. And we are taken over the project in the month of August. And this project, as we committed to the Ministry of Civil Aviation, and this project will be planned to complete by October end 2025. This is our plan and we are going according to that. We will definitely complete that project. तो अक्टूबर में तैयार हो जाएगा बिल्डिंग और सभी को एक नया आर्किटेक्ट और नए डिज़ाइन के साथ ले एयरपोर्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि अक्टूबर तक ये बन के आएगा और बहुत इंतज़ार था लोगों को, क्योंकि कई बार बोलते थे कि पहले ही इनॉग्रेशन हो जाएगा। हम समझते हैं चैलेंजेस भी काफ़ी हैं यहाँ पे, तो आपसे भी जानना चाहेंगे अक्टूबर तक क्या एयरपोर्ट जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा? अभी अक्टूबर तक का ही प्लान है कि अक्टूबर 2025 तक हम इसको पूरी फंक्शनली ऑपरेट कर पाएँ, उसी हिसाब से सारी प्लानिंग चल रही है। अभी चूँकि सर्दियों की वजह से लेबर चली गई है, अब 1 मार्च से हमें लेबर लाने का प्लान है। उसी हिसाब से 1 मार्च को लेबर ला करके जो वर्क हो सकते हैं उसके साथ करते हुए अक्टूबर 2025 तक इस काम को हम पूरी तरह से इनॉग्रेशन बिल्डिंग को चालू कर सकते हैं। जी जी। तो सर ये भी सवाल करेंगे आपसे, क्योंकि लद्दाख जैसे टेरेन में काम करना आसान नहीं है, और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों में कितना ज़्यादा इनपुट दे पाते हैं और अभी तक जो है कितना कंप्लीशन हो गया, कितना यहाँ पे परसेंटेज काम हो चुका है, और विंटर्स में किस तरह काम चलाते हैं और क्या क्या आप विंटर्स में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाता है जो आप काम एयरपोर्ट पे कर सकते हैं? Actually, in winter we are planned to do the works of entire electrical works and integrated IT works, airport system works, all work we can do. This is a mechanical related works, but the civil works not possible due to the climatic condition. It is not allowed as per the rules and regulations. And we are going to plan to start when the March first week, the changeover of the climate is happening. We will start all the works. But at present, the project 63% we completed physically and financially also, and we are fully hope the project will be end by October and it will be inaugurated, this project. Secondly, here lot of challenges there, particularly regarding the emission of carbon neutral. So emission of carbon is the biggest challenge, and the Prime Minister of India also given notification Leh is the carbon emission free land. So based on that, Airport Authority of India also changed the air conditioning system into geothermal technology, and from ground the solar energy we are taking, and the solar energy is we are converting it to the heat energy, and the heat energy will be into the building. Same vice versa for cooling also. It will save 0% carbon and save 30% electricity also to the nation. And plus we are installed 500 kilowatt solar power also. That also saving the carbon neutrality. It is a good thought, and it is helping Leh Airport the 0% carbon, and as per Griga rating we will achieve 5 star. This is our Airport Authority of India plan as per the Ministry of Civil Aviation.
जी, तो जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का उनका भी यही सपना है कि कार्बन न्यूट्रल बनाए और लद्दाख के लिए, तो आपसे भी जानना चाहेंगे सर, जैसे सर ने अभी काफ़ी अच्छे से समझाया कि किस तरह से जियोथर्मल के द्वारा जो है यहाँ यूएसपी रहेगा, एक यूनिक आइडिया जो है एयरपोर्ट में, जो मैं समझती हूँ ये पहली बार लद्दाख के ही एयरपोर्ट यानी कि ले एयरपोर्ट पे ये सब हो रहा है। तो इसको किस तरह आप करेंगे और किस तरह से ये बहुत अलग होने वाला है बाकी एयरपोर्ट से? ये इंडिया में पहली बार एयरपोर्ट्स के अंदर जियो थर्मल का कॉन्सेप्ट लेह में लाया गया है। इसके अंदर ज़मीन के अंदर 457 बोर किए जा रहे हैं, उससे हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके और उसको फ्लोर के थ्रू रेडियंट पाइप के थ्रू हम बिल्डिंग में हीटिंग देंगे, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो काफ़ी 30% कम होगा, साहब ने बताया। साथ में कार्बन न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी और ये कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार एयरपोर्ट्स पे लेह में ही लागू हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि पहली बार जो है कुछ अलग हो रहा है, कुछ यूनिक हो रहा है। और आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से ये तो बहुत बढ़िया एक अलग ही काम पूरे एयरपोर्ट, जहाँ कोई कहीं भी नहीं है वो ले एयरपोर्ट पे मिलेगा। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, आर्किटेक्ट की जब हम बात करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लद्दाख टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन है, तो उसमें जैसे ही वो फ्लाइट से निकलते हैं तो क्या अलग देखने को मिलेगा? क्या एयरपोर्ट से ही क्या लद्दाख का एसेंस जो है वो देख पाएंगे? किस तरह का आर्किटेक्चरल काम जो है यहाँ होगा सर? Actually, this is a good question. We are Airport Authority of India and our consultant Engineers India Limited, both are government, and we are 100% planning the airport terminal will come as a full of Ladakhi. That this is a dedication to the Ladakh, and tourists also will enjoy. And while entering, we want to create the wow factor. The terminal not like only glass and steel. So we are having lot of plans, and we, because of that, we employed our local artist, the local artists, and who are worked in Leh traditionally. And we are making the entry gate and exit gate, arrival, and we are lot of challenges in that, making the minute artist work. Even though we are employed more than 30 people, and the local artist, local plan, everything. And second, the terrain here in the our car park, we have 200 car parks. Along with that, we have the horticulture work, that we have the Zen technology. Zen technology, it is a dry place. We can able to multiple stones. Here there is no water. Plantation is minimum, but we are having plantation also. The Ladakhi culture, what are the plantations is there in the, they will grow, that we are planned, and it is will beautifully coming. And second, we have a very big Buddha statue in front of the arrival. It is a 6-meter height giant Buddha. So we will pray the building, and everything will come 100% with the Ladakh people and Ladakhi cultures. तो बहुत अच्छा कहा आपने, जिस तरह से आप लद्दाख को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। एक छोटे से अगर किसी को समझ में आना तो एयरपोर्ट से ही समझ में आ जाएगा किसी भी टूरिस्ट के लिए। तो सर, अभी सर ने कहा कि आपके जवाब में ये भी आपने जिक्र किया कि लद्दाख में पानी की शॉर्टेज है, तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो किस तरह से पानी का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा सर? यहाँ पानी के लिए एक एसटीपी सिस्टम लगाया गया, जिससे सीवरेज जो भी होगा उसको रिसाइकिल करके हॉर्टिकल्चर के अंदर पानी को हम यूज करेंगे, जिससे कि पानी का कंजम्पशन कम से कम रहे। और जो जियोथर्मल पे जो हमें हीट मिलेगी, उसी से ही गर्म वाटर का टॉयलेट्स में इंतजाम होगा, जिससे कि पैसेंजरों को गर्म पानी की सुविधा मिल सके। उसी मेथड से पानी को सेविंग की जाएगी। Adding on that, we have our water saving in around, we planned for the harvesting system. Entire airport, we will not miss one drop of water will go out. ये बहुत एक खूबसूरत इनिशिएटिव है जो पानी की किल्लत की बात करते हैं लद्दाख में, तो आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है और उस चीज़ को वेस्टेज नहीं करना है, वो आपने बहुत अच्छे से जिक्र किया आपने जवाब में। और सर, ये भी पूछना चाहेंगे, टर्मिनल में कितना कैपेसिटी रहेगा लोगों का, और डिपार्चर पे भी, अराइवल पे भी कितना बड़ा रहेगा, और अंदर अलग फैसिलिटीज़ जो है, हम फैसिलिटीज़ की जब बात करते हैं, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ और आपने वहाँ ऐड किया है?
Yeah, this compared to the old terminal is around 5,000 square meter only, but we are making now 29,000 approximately square meter building with the 3 levels. And first time in Ladakh, as per my knowledge, we are installing the escalator to 15 numbers escalator for going the step by step levels, and with the fixed link bridge, we have 3 numbers with the aero bridges, and the inside the fixed link bridge also we are providing 23 meters escalator. This is a new technology and new things, and we are incorporating here, and we have all the facilities comparing the old. Now we are increasing the 20 counters and the dual check-in counters and a dual security scanning system, and we have commercially shops also with the local intent, and everything we are planned, it will come successfully, I hope, before October. तो वही सर ने जैसे फैसिलिटीज़ के बारे में बात करी है, किस तरह से लोकल शॉप्स रहेंगे या कियोस्क रहेंगे वहाँ पे, तो ये भी अच्छे से समझाया आपने। तो आपसे भी जानना चाहेंगे सर, कार्गो टर्मिनल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमेशा से वो भी एक पार्ट रहा है, तो वो भी क्या इसी एरिया में होगा या इसी बाउंड्री में होगा, किस तरह होगा वो? अभी कार्गो टर्मिनल इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में नहीं है। इस बिल्डिंग के बनने के बाद जो पुरानी बिल्डिंग है उसको डिसमेंटल किया जाएगा, वहाँ पे नए अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, इसमें पार्किंग बे अभी 2 की जगह 6 पार्किंग बे हो जाएंगे। उस एरिया के अंदर फिर वहाँ पे कार्गो टर्मिनल का प्लान प्रस्तावित है, वहाँ पे कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। Adding on that, earlier now only we have 2 parking bays, so we can't able to increase the aircraft movements. Now after this old building demolition, we are adding on 4 parking bays, so 4 plus 2, 6 parking bays with the 3 passenger boarding bridge. It will make the airlines go fast deboarding boarding कर सकता है, immediate turnaround also will come. It will help the aircraft movement will be increased. Hope it will 3 to 4 times the aircraft movement will get increased because of the base. And the second, we have old building, it is 1.6 million per annum capacity, we call MEPA, and we are planning the new terminal building 3.5 million passenger per annum. So we will expect every tourist should come to Leh रेगुलरली, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। जी, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस भी देखे गए हैं जब हम पैसेंजर्स की बात करते हैं, हमें भी बुलाते हैं जब कैंसिलेशन होता है, डिले होते हैं, बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। तो सर, न्यू टर्मिनल में हम ये पूछना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि वेटिंग एरिया नहीं होता है उनके पास, तो और उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं रहते हैं, और क्योंकि एयरपोर्ट पुराने वाले हैं, वो छोटा है, वो उस तरह से पहले बनाए थे क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो अभी आप समझ सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। तो उस बारे में जानना चाहेंगे, क्या अलग क्या रहने वाला है सर? It's a very good question. Old terminal is very small and we are not having parking bay, car park area, very limited scope. Now from that 20 acre, we are now 30 acre land we got, and we are making the big airport and 200 car park facility and waiting area also, along with the canteen facility with the toilets, restrooms, and a big room already we have made for that, driver resting rooms, and other facility for the police and CSF also we are making inside as per the security reasons, and we are increasing the security equipments also inside the terminal building as per our BCS norms. तो इस बार जैसे हम बाहर जाते हैं, कोई ट्रैवल करता है, हम दिल्ली एयरपोर्ट देखते हैं या कोई भी एयरपोर्ट देखते हैं, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी रहते हैं। तो लद्दाख में जो लेह का एयरपोर्ट बन रहा है, वो पूरी तरह से बिल्कुल यूनिक और अलग बनने वाले, तो उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? यहाँ के लोकल जो भी वो है, एग्जिट गेट है, एंट्री गेट है, पुद्दा है, पेयर व्हील है, पेयरिंग व्हील्स है, सब लद्दाखी कल्चर के हिसाब से ही बिल्डिंग में प्लान किया गया है। तो वो एक यूनिक फीचर होगा जो और एयरपोर्ट से लद्दाख एयरपोर्ट को अलग बनाएगा। साथ साथ जियोथर्मल की वजह से यहाँ हीटिंग हम कर रहे हैं, वो अलग करेगा। एरिया हमारा पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से 4 गुना बढ़ जाएगा, तो पैसेंजर को वेटिंग एरिया में और सिटिंग एरिया में बैठने के लिए काफ़ी एरिया मिलेगा, तो वो दिक्कत नहीं रहेगी जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर पैसेंजर को फेस करनी पड़ रही है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को टाइम निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस बार जैसे इंतज़ार लोगों का ये कहना था कि कब खुलेगा, कब बनेगा, तो सभी को मुझे लगता है जवाब मिल गया है, अक्टूबर में आप खुलेंगे। हाँ, ज़रूर यहाँ बहुत चैलेंजेस हैं और तब भी आप डटे रहे, आप काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया बहुत खूबसूरती से, क्या यहाँ रहेगा, लोकल आर्किटेक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, पानी का किस तरह से खास ध्यान रखा जाएगा और हीट किस तरह जियोथर्मल के थ्रू यहाँ पे। और पहली बार मैं आपको बता दूं पूरे इंडिया में ले एयरपोर्ट पे ये जो फैसिलिटीज़ की जो जियोथर्मल के थ्रू आप करने वाले हैं, ये पहली बार हो रहा है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी यहाँ पे जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, विंटर्स में आप बाहर से आए हैं सर, तो तब भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रैवल नेक्स्ट ईयर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। और आपने सुना कितनी कैपेसिटी यहाँ पे इन्होंने रखा है, और 63% जो है अभी एयरपोर्ट बन चुका है। और सबसे खास बात, जैसे ही आप एयरक्राफ्ट से निकलेंगे और जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर घुसेंगे, लद्दाख का तो लगभग आपको मालूम ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आर्किटेक्ट भी बनाया है। तो दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के लिए टाइम निकालने के लिए। और साल का पहला दिन है, आपको भी विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और इस न्यू ईयर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और खासकर एयरपोर्ट की जो इंतज़ार है वो भी आप इस साल में आप देने वाले हैं। तो Thank you so much. Definitely, Airport Authority of India will make the very fantastic, beautiful new terminal building, along with all the passenger facilities, comparing to the other airports also. Secondly, we will create the wow factor. Every passenger should happily create, and they should come back to Leh. This is our Airport Authority of India wish. Thank you. then we are also waiting for that wow factor that people should see, especially the tourists and people coming here to explore. And thank you so much for joining. तो उसी के साथ टाशी यांगजोम और मैं रिक्जिन वांगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।